Hi, good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. We finished with the Functions. फंक्शन स्टार्ट किए रहे सम हाँ, फंक्शन से कह रहा yeah, we started with functions. Okay, I just started with functions, like how to deal with functions and some of the basics functions what we covered. And so let's talk about so Jan, let's start. We have I have some names over here. Let's say I have Nitin, Ash, Raj, Rajat. We have one function. Let us learn the function before in advance. That is called random between. Okay, Darshan. I always use this random between function right from the first lecture. Random between is a function which will always take the bottom and the top numbers. You are just supposed to keep two numbers separated by comma, and random function will automatically take care all the numbers between, I say, let's say I'll take a small number so that it will be easy for us to understand. I say 1 to 10 to 100. Okay, so ये हो जाएगा. Always you will see that. How I got these numbers? Yes, sir. Okay, but now this is a random function. So by default you have the function inside. यहाँ पे there is no 45 over here. This cell is always talking about that I am a random number, and random numbers are automatically generated whenever there is an updation in the sheet. Wherever you update. See, for example, if I update somewhere over here, if you type something over here also and you press enter here, you will see all the numbers will be changed. Even if I delete this, the numbers they are always regenerated because they are randomly created again and again, because still they are active mode in random function. So if you want that these numbers should not be again and again, it shouldn't be changed, then you have to remove the function from here. You'll have to make all the numbers as a normal number without the function. So क्या करेंगे प्रकाश जी? हेलो सर, पेस्ट स्पेशल करेंगे ओनली वैल्यूज. शाबाश, वेरी गुड. आप लोग सब सीख करते हो, आ रहे हो. एंड सो हम लोग क्या करेंगे इसको इसी जगह पे. आई जस्ट वांटेड टू रिमूव कि यहाँ पे 98 की जगह पे ये रैंडम बिटवीन नहीं आना चाहिए. ऑल द फंक्शन शुड बी रिमूव. ओके मानसा, तो हम लोग क्या करेंगे? आई विल सिलेक्ट ऑल दिस. आई प्रेस कंट्रोल सी. आई विल कॉपी दिस, राइट. कॉपी करने के बाद में मुझे जहां चाहिए मैं वहां पे पेस्ट कर सकता हूं. सो व्हेनेवर यू पेस्ट, दर्शन, there are many methods of pasting. There are many methods of pasting. I can directly paste it somewhere else. I say I paste it over here. So if I paste it over here by pressing Control V, so this will become a normal paste. Okay, this is a normal paste. Okay, but when you paste it, you can just see that still even these numbers are with the functions. हम लोग क्या करेंगे? Instead of normal pasting, I will select all these numbers. I press Control C. Wherever I want to take it, I can take it there, but I want to paste it over here. So now I press Control Alt and V. This is called special paste. Control Alt V. जैसे आप Control Alt और V करते हो तो आपको दिखता है ये सब चीजें हैं. I want to paste only formulas. I want to paste only values. I want to paste only the formats. I want to paste only the comments or the validation part. ये सब चीजें मैं कर सकता हूँ. ठीक है ना? So I just say that this time I just want to paste only the values. Means from the selected copied, paste only the values. Do not paste the formula. ठीक है ना? तो जैसे ही मैं OK करूंगा, at the same place these values are pasted now. So you will see that the formula is gone. Only the values are remaining here. So whenever you want to just paste the values, you can do that. ठीक है?
Now this is my, I just say this is my sheet 1, which is my product. Which product these are? They are selling all it's health products, suppose. Okay, I have one more. I will insert one more. I'll make a copy, and I say create a copy. How do I create a copy? Directly I can create a copy. I can hold the control key also. ये और एक वाला बन गया. And this time this is my product. गलती किया मैंने actually. पता है क्या गलती किया? Yeah, गलती किया ये कि I will just make a copy first and then I will remove the values, right? So that all the numbers will be different. So I have one more product over here. अभी example मेरे दिमाग में आया है तो मैं डाल रहा हूँ. जैसे product health हो गया. This is product sports example. Okay, I have one more sheet this time, and I insert one more sheet, copy it, and this time I give it product. क्या डालेंगे? Sports हो गया, health हो गया, utilities we can give. ठीक है? I have 3 products here. और सब लोगों का ये Jan to April का sales figure है. ठीक है? This is a random generated example. मेरे को अभी दिमाग में आया तो मैंने डाला. क्यों डाला बताता हूँ. And now I will select all, and I just say Control C, and this time I'll paste it as a only the value part, and for all my 3 sheets I will do the same. ठीक है ना? Cool. Okay, now my question is कि I want a complete report over here. Complete report. Sales report. ठीक है? And in the sales report, what I want is I want the complete sales of all my products. समझ में आ रहा है आपको? So this is Nipun ka sales in the month of Jan. But I want the sales of Nipun in the month of Jan for all my products. Suppose if I have something like this where I have health products, sports products, utilities products, ये सब बेच रहा है. ये लोग सारे मेरे जो executives हैं, 5 जन, they are all selling all these products, suppose. And I just want to take the sales report of month of Jan. It's very simple. There are many different ways. I can just say equals to product health, this one, plus this one, plus this one. So you can see this, what I did. बराबर है ना? So all the products are added, and then you press Control C and you select all, and you will get a complete report. So let's verify, let's recheck it कि ठीक है या नहीं. So we have Nipun in the month of say February, we have 74. Let's cross check it. It's 13 plus 11 is 24. 24 plus 50 is 74. Yeah, it's 74. Correct? बिल्कुल दुरुस्त आंसर आया है. बट सोचो कि अगर आपके पास में बहुत सारे शीट्स हो तो क्या करोगे आप? है ना? तो हम लोग क्या करेंगे मालूम? हम लोग अभी मैं आपको जो सिखाऊंगा उसको हम लोग कहते हैं 3D सम. 3D पिक्चर देखा तुम लोग ने? तो दिस इज कॉल्ड 3D सम. एक होता है सम, दूसरा होता है 3D सम. अभी क्यों 3D बोलते हैं इसको? जैसे 3D फंक्शन लिखेगा ना, इसमें काला चश्मा लगा के तुमको फंक्शन लिखना पड़ेगा. दिस इज 3D सम.
मेरा पीजे है ये थोड़ा सा, तो मैंने चश्मा लगाया हुआ है। प्रकाश जी आप भी लगा लो। शुरू करते हैं 3D सा। ओके, क्या होता है, बहुत सारा शीट है ना यार, लॉट ऑफ शीट्स आर देयर, राइट? सो आई कैन जस्ट डू वन थिंग, आई से इक्वल्स टू सम करो, ब्रैकेट ओपन, एंड देन I'll have to write in quotes, I'll have to start। या फिर एक काम करो, आपको अगर हाथ से नहीं लिखना है तो आप उसको बोलो कि यहां से लेकर, ठीक है, डोंट क्लिक ऑन द सेल, होल्ड द शिफ्ट की एंड से यहां तक। यू कैन जस्ट सी, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं सम में A1 to A10, B1 to B10, we select the range of cells, right? Now this is range of sheets. So from product health to product utilities, and you can just see one more, you can see the exclamation symbol there. Okay, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, देखो इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, और जब ये आप ये करते हो ना, इसका मतलब क्या हो गया, D2 to D6, बराबर है? तो दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ सेल्स। उसने क्या किया, उसने किया कि प्रोडक्ट हेल्थ से लेकर प्रोडक्ट यूटिलिटीज, उसने ये फंक्शन लिखा, प्रोडक्ट हेल्थ से लेकर प्रोडक्ट यूटिलिटीज तक, कैन यू टेक द टोटल ऑफ B2 सेल, क्या पता है समझ में आ रहा है आपको? देखते हैं राइट है कि रॉन्ग है, मालूम नहीं है, मैंने अभी हाथ से लिखा है। Okay, you can put the single quotes only and only when your product, when your sheet is having a space। अभी मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं चलेगा, मैं नहीं भी डालता तो भी चलता था। मुबारक हो, 148 आया आपने को। So without clicking 50 sheets, you can just type the first sheet name and the last sheet name and the cell। ठीक है ना, अपना काम ज़ाला, एकदम सिंपल है। सर इसको, हाँ जी गणेश। सर इसको जो है सेलेक्ट के लिए आपने करा था ना, हाँ जी, इक्वल टू फिर उसके बाद हमने ब्रैकेट ओपन करा था, फिर उसके बाद सीट मैं बताता सेलेक्ट कर। हाँ। सबसे पहले तो सम को बुलाना। नाउ दिस इज 3D सम, इसके लिए करते हैं हम लोग, बिकॉज दिस इज 3D का मतलब होता है कि शीट वाइज भी जा रहा है वो और सेल में भी जा रहा है, राइट? ऐसे समझ के मैं चल रहा हूँ। तो दिस इज शीट वाइज, मतलब मैंने इसको पहला शीट दे दिया एंड देन होल्ड द शिफ्ट की एंड होल्ड एंड क्लिक ऑन द लास्ट वन। तो देखो अपने आप उसने ये ले लिया, प्रोडक्ट हेल्थ प्रोडक्ट सेल, और उसके बाद मुझे सिर्फ देना है कि कौन सा सेल है, ऐसे B2 सेल, एंड आई क्लोज द ब्रैकेट। उसने पूरा फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, इतना समझ में आया? सर इसमें सब वही सेल रेफरेंस सबके सब शीट्स के सेम होने चाहिए ना? या 100% सेम। किसी एक में हुआ तो वो नहीं पकड़ेगा। हाँ नहीं नहीं, नहीं इसीलिए बनाया हुआ है। ओके, अब इसमें इसका फायदा ये है कि अगर अभी देख सकते हो आप कि वी हैव 148 ओवर हियर। ओके, इन केस अगर प्रोडक्ट हेल्थ और प्रोडक्ट यूटिलिटीज के बीच में और अगर कुछ भी बीच में बंदे आते हैं, दिस विल ऑटोमेटिकली गेट रिफ्लेक्टेड। तो लेट्स से दैट इफ आई ऐड वन मोर शीट, इसको कॉपी करता हूं मैं, या इसको कॉपी करता हूं, चलो आई जस्ट कॉपी दिस वन एंड आई से मेक अ कॉपी। अब मुझे पूछते हैं कहां पे रखूं कॉपी, आई से आफ्टर माय क्रिएट अ कॉपी एंड बिफोर प्रोडक्ट यूटिलिटीज, मतलब यूटिलिटीज के पहले मेरे को चाहिए। ओके, तो ये यूटिलिटीज के पहले उसने एक प्रोडक्ट शीट डाल दिया। अब आप जरा देखो तो सेल्स रिपोर्ट में 148 दिखा रहा है क्या, निपुण का सेल्स इन द मंथ ऑफ जैन? नो, इट्स 191 नाउ। आ रहा है समझ में सब लोगों को? यस सर। 3 लोग हैं जो मेरे को दिखाई दे रहे हैं, अच्छा लगा आप तीनों को देख के। आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, ये मेरी आप लोग का ब्लेसिंग दे रहा हूँ। ओके, समझ में आया आपको? यस सर।
ओके, अब इसमें एक प्रॉब्लम भी आएगा। प्रॉब्लम क्या आएगा मालूम है? कि अब प्रोडक्ट हेल्थ और प्रोडक्ट यूटिलिटीज के बीच में कोई आना नहीं मांगता है। अगर कोई आया तो गया। हो सकता है देर आर चांसेस, देर इज अ पॉसिबिलिटी वेयर यू वांट, देर मे कम, some sheet might come in between, like बैलेंस शीट आ गया, या दिस हैज नथिंग टू डू विद दिस, ऐसा कुछ आ गया, मेरा एक जनरल रिपोर्ट आ गया, कुछ भी आ गया। तो ओके, लेट्स से आई विल ऐड दिस न्यू शीट। देखो आ गया क्या? नहीं आया। हेल्थ आ गया, स्पोर्ट्स नहीं आया। It's still 191. So I'll just right click on it. I say I want to move a copy. I say create a copy, product health. I say okay. तो ये और एक कॉपी बन गया वो। लेकिन आप देखोगे कि वहां पे अभी भी उतना ही रहेगा 191, बिकॉज ये प्रोडक्ट शीट यहाँ पे आ गया। ओके, इट इज नॉट इन, बीच में नहीं आ रहा है। सो इन केस आई वांटेड कि भाई ये शीट अगर बीच में आती है, बिकॉज दिस हैज नथिंग टू डू विद दिस, ये मेरा कुछ अलग ही चल रहा है, ये मेरा यहाँ पे कुछ मेरा अलग ही मामला चल रहा है। दिस इज माय फाइनल रिपोर्ट ऑफ परचेज, सपोज कुछ और ही है ये, it has nothing to do with anything, but I have some figures over here and this will 100% this is going to reflect, because this is nothing but this is my, it's my balance sheet, correct? If in future, if this balance sheet comes in between, you will see that your final sales report is now changed to 229. आ रही है समझ में? यस। अब मैं आपको जो दिखाऊंगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग में से किसी को भी ये यूज नहीं करने आता होगा, या फिर कहीं आप लोग ने देखा नहीं होगा, क्योंकि ये चीज मैंने ना बहुत खुरेद के निकाली है। क्योंकि ये चीज मुझे है ना, जब मैं ये प्रैक्टिस करता था ना एक बार, तो मेरी आदत है ये। देखो, आदत आप भी बनाओगे ना तो आप लोग भी मेरी तरह बहुत सारा चीज सीखोगे। हाउ आई लर्न, मैं इसमें संतुष्ट नहीं हो जाता हूँ कि अरे वाह, सीधा इधर क्लिक कर दिया, ये इसने मस्त बना लिया। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि पीपल थिंक इट पॉजिटिवली, कि स्टार्ट दे दो, एंड दे दो, आपका बीच का सब वो टोटल मार देगा। मैंने स्टार्टिंग में तो खुश हुआ कि यार दिस इज सो नाइस, मुझे एक एक सेल करके क्लिक नहीं करना पड़ता है, मुझे सिर्फ एक शीट और लास्ट शीट कर दिया और सिर्फ बोलती है B2, उसने ले लिया। लेकिन फिर जो ये दिमाग है ना, खुफिया दिमाग, वो उल्टा भी सोचता है, नहीं मेरे को मेरा बीच का शीट नहीं करने का है। तो अब एक्सेल को कैसे मालूम पड़ेगा आपने? मैं चाहता हूं कि नहीं, बैलेंस शीट बीच में आना चाहिए, लेकिन इसको टोटल नहीं मारेगा। दिस शुड नॉट रिफ्लेक्ट। नाउ हियर कम्स इनटू पिक्चर व्हाट यू नो, हमारा सन भी वैसे नाम देना। हियर कम्स इनटू पिक्चर वाइल्ड कार्ड। आपने नाम सुना है वाइल्ड कार्ड्स का? नहीं सर। रजत ने सुना है? रजत, बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री। एक क्या बात है, बिग बॉस बहुत देखते हो रजत। आपका अब तक एक पर्सनैलिटी भी ऐसा है कि एपिसोड नहीं आपको देखा। खुद को बिग बॉस में जाना चाहिए। मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा, रोडीज देखता हूँ। सो वाइल्ड कार्ड का एंट्री से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वाइल्ड कार्ड जो होते हैं ना, ये हम लोग यूज करते थे कहाँ पे पता है? एक जमाना था MS DOS का, अभी तो विंडोज का जमाना है, ये 1995 में था जमाना। यहाँ पे बहुत चलता था क्योंकि हम लोग कमांड्स करते थे। सो हाउ द वाइल्ड कार्ड्स वर्क, से फॉर एग्जांपल, ये आपको पूरे एक्सेल में यूज होने वाला है। ये बहुत कम लोग एक्सेल में यूज करते हैं, लेकिन जिसने यूज किया वो बहुत कुछ पा लेगा। ओके, कैसे पाएगा? देखो, मैं आपको पहले वाइल्ड कार्ड बताता हूँ करता क्या है। अगर फ्यूचर में एक्सेल में सपोज आई हैव एप्पल, मैंगो, ओके, grapes, then I have pineapple, whatever, banana and so on. अगर मैंने अभी बोला कि हाउ मेनी टोटल फ्रूट्स आर देयर
which are starting from A and the rest I don't know. So there are two types of wildcard. One is called asterisk and one is called a question mark. बहुत पुराना पद्धति है ये, ऐसा समझ लो संस्कृत के जमाने में ब्राह्मण जो होते थे ना, पंडित लोग यूज करते थे उस जमाने में. तो asterisk और क्वेश्चन मार्क, दिस इज दे आर बोर्न व्हेन कंप्यूटर्स वर बोर्न, जब MS DOS पैदा हुआ था. asterisk will represent the entire word. ये बहुत काम की चीज है, सुन लो. asterisk जो होता है ना, वो पूरा का पूरा वर्ड को रिप्रेजेंट करता है. मतलब अगर मैंने कहीं पर भी asterisk डाल दिया, इट मींस मैं बोल रहा हूं कि बाकी का पूरा वर्ड हो गया. एंड व्हेनेवर आई पुट अ क्वेश्चन मार्क, इट मींस आई एम रिप्रेजेंटिंग ओनली अ सिंगल कैरेक्टर. गेटिंग मी? इट मींस अभी मैं सपोज एग्जांपल ले लो, ये एप्पल मैंगो ग्रेप्स है ना, राइट. मैं इसको बोलता हूं कि लुक फॉर A star. You know what do you mean by A star? A star का मतलब होता है anything which starts from apple. Sorry, anything starts with A. तो in case अभी यहाँ पे अगर अमिताभ भी होता ना, तो भी वो उसको पकड़ लेता, क्योंकि मैंने A star बोला है. Means I have given the first letter, but I said rest of the letter. Excel, you take it. If the letter is of 4 characters, 5 characters, 3 characters, 10 characters, I don't mind at all, but I just know that the word is starting from the first letter is A. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? I'm just making you understand the concept. This concept will be used everywhere whenever you use any function. अभी हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो. स्टार लगाने का मतलब होता है कि मेरे को मालूम नहीं है, आगे का कुछ नहीं मालूम है, राइट? ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि I know all the words, but I don't know some specific words. Can you find that? मुझे बोलता है what? I say, just find something जिसका सेकेंड कैरेक्टर जो है ना, सेकेंड कैरेक्टर वो A होना मांगता है. I can count, I can take the total, I can VLOOK up, I can do anything. जो भी आगे करेंगे using this wildcards, because people never use wildcards in their functions in Excel. लेकिन अभी आपको पता चलेगा, तो आप कभी कोशिश करके देखना कि अभी मैं बोल रहा हूं कि मुझे वो लोग चाहिए इस लिस्ट में से जिसका सेकेंड कैरेक्टर A होना मांगता है. तो हाउ विल आई राइट दिस? फर्स्ट कैरेक्टर, डू यू नो? फर्स्ट कैरेक्टर से कोई मतलब है आपको? फर्स्ट कैरेक्टर कैन बी A, B, C, D, A to Z, कुछ भी होना मांगता है. देन यू पुट अ क्वेश्चन मार्क. मींस फर्स्ट कैरेक्टर भाई एक्सेल तू खुद लगा ले, लेकिन सेकेंड कैरेक्टर हम दूंगा. तो एक्सेल बोलता है अगर इतना छोड़ दिया ना मैंने, इतना, इट मींस आपने कंपलसरी बोला है कि वो वर्ड जो है वो 2 कैरेक्टर का ही होना चाहिए. पहला कुछ भी, लेकिन सेकंड A, मतलब द वर्ड शुड बी ऑफ 2 कैरेक्टर. इसके लिए मैं पीछे क्या लगा दूंगा? आप समझे इसको कैसे यूज कर रहा हूं मैं? कि फर्स्ट कैरेक्टर भैया तू कुछ भी लगा दे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सेकंड नंबर है वो A होना चाहिए, और उसके बाद कुछ भी. तो अभी जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा, तो अगर इफ आई एम काउंटिंग समथिंग, तो मुझे बोलेगा 2 है ऐसे बंदे यहाँ पर लिस्ट में, एक है मैंगो और एक है बनाना. आ रहा है समझ में? अब आप सोचो कि इसका यूज हम लोग यहां पे कैसे करते हैं. देखो आप देख सकते हो, आप सेल्स रिपोर्ट में टोटल कितना फिगर आया? 229, बराबर है. दिस 229 इज इंक्लूडिंग फ्रॉम प्रोडक्ट हेल्थ टू प्रोडक्ट यूटिलिटीज. आपको देखना है तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्रोडक्ट हेल्थ से लेकर प्रोडक्ट यूटिलिटीज तक आया हुआ है. नहीं तो फिर आप मैन्युअली करते बैठो, एक एक शीट को क्लिक करते बैठो, कंट्रोल दबा दबा, एंड यू स्किप दैट बैलेंस शीट. ये भी कर सकते हो आप मैन्युअली. तो इट्स 229, याद रखना है आपको. 229 जो है विच इज इंक्लूडिंग योर बैलेंस शीट का 38, मतलब एक्चुअली जो है अपना वो है, होना चाहिए कि 229 माइनस 38, 191. हम लोगों को यहाँ पे एक्चुअली 191 मिलना चाहिए, बिकॉज मुझे बैलेंस शीट तो इंक्लूड करना ही नहीं है, करेक्ट? तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ? देखो, मैं इसको सम को बुलाता हूँ. अब देखो कितना कितना फाइन फॉर्मूला बन जाएगा. सम को बुलाता हूं मैं, सम को बुला के एक सिंगल कोड हमेशा देने का, बिकॉज इफ योर वर्कशीट इज हैविंग स्पेसेस, then you will not get an error when you put a single quote, otherwise you will get an error. So
पहली बात तो कभी भी वर्कशीट्स में ना स्पेसेस डालने का नहीं रहता है, वो कभी भी याद रखना कि यू शुड नेवर गिव स्पेसेस इन योर वर्कशीट्स. दिस इज अगेन अ मेथड ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम. जब भी आप कोई भी डेटाबेस सिस्टम पे काम करोगे, कोई भी एक्सेस, ओरेकल, एसक्यूएल, किधर भी जब आप काम करते हो, ये हम लोगों को स्कूल टाइम पे सिखाया जाता है कि कॉलम हेडर्स जो होते हैं आपके, व्हेनेवर यू राइट योर कॉलम हेडर्स, तो आप कभी भी कॉलम हेडर्स में ऐसे मत लिखना ना. यू शुड, आई ऑलवेज गिव लाइक दिस, प्रॉफिट, ऐसे करके देते हैं हम लोग, तो ये एसक्यूएल के लिए फायदा रहता है. ठीक है, सो नाउ आई विल टाइप द थिंग्स. देखो मैं क्या टाइप करता हूँ, ऐसे इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन. अभी सिंगल कोट में लिखता हूं मैं, किसका टोटल मारना है मुझे, वो सारी शीट्स का. आई वांट टू टेक द टोटल ऑफ ऑल शीट व्हिच इज हैविंग PROD, because PROD is all the sheets which is having my product details, right? आ रहा है समझ में? बिकॉज ये तो मेरे को सिस्टमैटिक बनाना पड़ेगा ना. मेरे सारे प्रोडक्ट शीट्स मेरी सारी चालू होती है प्रोडक्ट से. तो बैलेंस शीट है, परचेजेस है, अगर कोई भी ऐसी बीच में शीट आ जाती है which is not starting from PROD, तो I don't want them to get included in my reports, right? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बाकी लोग हैं कि नहीं है, आई डोंट नो. दर्शन, यू आर गेटिंग मी राइट? यस सर. वेरी गुड. Yes, दर्शन sir. है, गणेश है, सो नाइस ऑफ यू. जयराज, बस ऐसे ही बने रहिए. तो मैं भी यहाँ पे क्या करता हूँ पता है, मैं बोलता हूँ कि एक्सेल PROD ये कॉमन है, ये मेरे को मालूम है, PROD मुझे मालूम है, लेकिन उसके पीछे कुछ भी हो सकता है, वो तू डिसाइड कर ले. ठीक है? सो दिस इज माई शीट नेम एंड आई विल जस्ट बंद कर देता हूं. खत्म. बस सारे प्रोडक्ट शीट का B2 खल्लास. अपना पूरा 50 शीट भी रहेगा ना तुम्हारा, so all your 50 sheets will be added and you press, you get 191. You have not received 200 वाला, उसने ये निकाल दिया. अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो फॉर्मूला देखो एक्सेल ने कितना ब्यूटीफुल बनाया रहेगा, कैसे जंप मारेगा देखो. वो प्रोडक्ट हेल्थ से सीधा जंप मारा उसने प्रोडक्ट स्पोर्ट्स पे. आ रहा है समझ में? मैं ये दिखा दूंगा. आ रहा समझ में आपको? Yes, sir. बस अब हमको कौन हूं चिंता नहीं. अब हम कंट्रोल C करके अगर बीच में और भी कोई आ जाता है, सेल्स रिपोर्ट, I will just right click, I say move or copy, create a copy after my product sports here. One more sheet is added over here, and still your final sales report is 191. But if I just copy this one, I say one more copy after my balance sheet. I say okay, and just go and check. अच्छा, अभी ये अपडेट नहीं हुआ. पता है क्यों? ये ड्रॉबैक है इसका. बिकॉज व्हेन यू आर यूजिंग दिस वन, ऐसे जब आपने लिखा ना, तो वो फर्स्ट टाइम के लिए रहेगा. ये मेरे को अभी तक मिला नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ. ये मेरे को अभी तक नहीं मिला. मैं हमेशा ट्राई करता हूँ, लेकिन इंस्टॉल मुझे अभी तक नहीं मिला. अगर आप लोगों को ये मिलता है तो प्लीज मुझे बता देना. आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? आई एम वेरी ऑनेस्ट इन माई लेक्चर्स. यहाँ तक तो मैंने ढूंढ निकाला है, लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि एक्सेल जब तूने इतना दिया है तो व्हाई यू आर नॉट अपडेटिंग इट. मतलब क्या होता है देखो. नाउ सी, आई से इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, आई से टेक द टोटल ऑफ ऑल माय प्रोडक्ट शीट, राइट? और पीछे का मुझे मालूम नहीं है. एंड तो उसने क्या किया, प्रोडक्ट वाले का सबका B2 उठा लिया और टोटल मार के इसने मुझे इधर राइट इसने मुझे 234 दे दिया. आपको पता है इतने 234 में ना ये बैलेंस शीट को इंक्लूडेड नहीं किया. ये दोनों बैलेंस शीट्स आर नॉट इंक्लूडेड. इफ यू वांट टू चेक इट, देन यू कैन चेक. यहाँ से भी अगर मैंने 38 निकाल दिया
यहाँ से भी अगर मैंने 38 निकाल दिया तो भी आपका सेल्स रिपोर्ट इज 234. Yes, sir. ठीक है, ओके लेट्स सी. लेकिन अगर मैंने अभी प्रोडक्ट स्पोर्ट्स का 43 निकाल दिया तो कम कर देगा. ये कौन सा रिपोर्ट है? सॉरी, यही था ना? 91. ओके, निकाल दिया. नाउ लेट मी चेक कि हाँ बहुत बार है ना. ओके, आई जस्ट डू वन थिंग. प्रोडक्ट्स ये कितना टोटल आ रहा है? सेल्स रिपोर्ट का 234 आ रहा है ना. आई विल कॉपी दिस आफ्टर माय बैलेंस शीट. आई क्रिएट अ कॉपी और एक आ गया इन बिटवीन एंड नाउ आई जस्ट गो एंड चेक. देखो, अगर बीच में कोई शीट आ जाता है प्रोडक्ट का तो वो नहीं लिया. अभी भी उसने 234 ही किया, राइट? वही बोल रहा हूँ. जबकि उसको प्रोडक्ट हेल्थ से मैंने ऑलरेडी बोला हुआ था ना, प्रोडक्ट हेल्थ, प्रोडक्ट स्पोर्ट्स. अब देखो उसने क्या किया, कितना लिया उसने? प्रोडक्ट हेल्थ लिया, ही टुक प्रोडक्ट स्पोर्ट्स 3 ये वाला, देन ही टुक लिया. प्रोडक्ट 4 नहीं लिया उसने. क्यों नहीं ले रहा है वो आप फाइंड आउट करो. अभी तक तो मुझे पता नहीं चल रहा है क्यों नहीं ले रहा है वो. तो एक बार इफ यू हैव लॉट ऑफ शीट्स देन इफ यू वांट टू डायरेक्टली अप्लाई तो ये इसको आप अप्लाई कर सकते हो. And you can add a lot of other sheets in between. It will not take the total. Now, ये तो हो गया. But this or any questions you all have? Some No, colleague. sir. Okay, but what are the limitations here? The limitation is एक लफड़ा है इसमें. लफड़ा क्या है? लफड़ा ये है that all your data should be exactly on the same cell. Even though चलेगा, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि see product health है, I have same fields, everything I agree. I have same fields for product health. I have same fields for product. इसको उड़ा देता हूँ मैं. Then we delete the repeat वाला. So I have product health, sports and utilities. ठीक है, मैं जानता. I know that all I have the executives are same, my months are same, but not necessary ना यार. हो सकता है कि I have 2 rows left in between over here. I have a title over here, okay, and in my product health the same things are there. It's starting from A3 and this is my region, where here the region is somewhere else. हो सकता है कि नहीं हो सकता? रीजन अलग हो जाएंगे तो क्या करोगे दर्शन? हवन करेंगे और कुछ नहीं कर सकते हो आप. रीजन अलग हो गया तो आपका 3D सम नहीं चलेगा. ओके, 3D सम को एक सेल नंबर चाहिए होता है. तो ऐसे टाइम पे क्या करेंगे हम लोग? ऐसे टाइम पे हम लोग डेटा कंसोलिडेशन करेंगे. I'll select this सेल्स रिपोर्ट. ओके, मुझे क्या चाहिए ना मैं? सपोज ये यहाँ पर है, ये कहीं और है. I'll just do one thing. I'll click यहाँ पर. अच्छा चलो यहाँ पे नहीं रखता हूँ भाई. यहाँ पे क्यों रखूँ मैं? ओके, नाउ सी दिस. I will write here equals to sum bracket open from year to year exclamation B2. You press enter. क्या भाई क्या हो गया इसको? सॉरी, 2 बार आ गया. ओके, ठीक है ना? Now if you just take these people and just move it over here and just see the sales report. ये देखो क्या हो गया इसका हालत. इसका हालत क्या हो गया? 81 आ गया बिकॉज इसने अभी इसको छोड़ दिया ना. इधर तो B2 में कुछ है ही नहीं. ओके, इवन दिस, ये बंदा भी अगर यहाँ से उठा के मैंने इसको यहाँ रख दिया तो इसका हालत और खराब हो गया. अब ये 38 हो गया, ये और कमजोर होते जा रहा है. लास्ट में ये अपनी जान दे देगा. ये बेचारा बोलेगा अब मैं जी नहीं सकता हूँ क्योंकि खून ही नहीं है इसके पास. ये लोग सब बिना खून के मर गए. यहाँ पे काफी बच्चे बैठे हैं, हंस रहे हैं. ठीक है, आप अभी मजा लीजिए. दर्शन देख रहे हैं. दर्शन, यू आर गेटिंग मी? Yes, sir. Okay, Darshan. So this is the problem. So you understood like what I want to say?
कि Yes, if sir. this is my sales report and my sales report is dependent on all these 3 reports, but when these people are moving out, ये लोग जब हिल रहे हैं तो सेल्स रिपोर्ट डगमगा रहा है. ओके, चलो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम अंडू कर देते हैं सबको. सर एक इसमें क्वेश्चन था सर. हाँ जी. सर इसमें जैसे नाम हम लोग ऊपर नीचे, कोई सीट में पहला नाम जैसे इसमें निपुण का है, ऊपर नीचे नाम होगा तो भी सेल रिपोर्ट में डिफरेंट दिखाएगा ना? 100% वो तो दिखाएगा ही दिखाएगा ना. ये सेम होना चाहिए, सारा सेम होना चाहिए ना नाम वगैरह? सारा सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, नहीं तो फिर मिसमैच हो जाएगा. अभी दर्शन ऊपर गया तो दर्शन का सेल्स 40 की जगह पे 38 हो जाएगा. हाँ, अगर आप निपुण को नीचे भेज रहे हो तो ये सबको नीचे भेजो, बिकॉज दिस इज अ रिकॉर्ड ऑफ निपुण, राइट? यू कैनॉट सेंड अभी समझो सॉर्ट करूं तो मैं, इफ सपोज इफ आई वांट टू सॉर्ट बाय नेम, सबको सॉर्ट करते हैं, राइट? सॉर्टिंग पता है ना? यस सर. Yes. चलो आगे का टॉपिक है, लेकिन बता देता हूँ. चलो बात निकली है तो बता देता हूँ. सॉर्ट करना है, सॉर्ट करने के लिए मुझे कुछ सिलेक्शन की जरूरत नहीं है. आई गो टू डेटा दर्शन एंड आई जस्ट गो टू सॉर्ट हियर. व्हेन आई गो टू सॉर्ट, ही इज आस्किंग मी कि सर सॉर्ट बाय व्हाट. अरे वाह, शायरी बन गई. सॉर्ट बाय व्हाट, तो आई से सॉर्ट बाय व्हाट, आई से सॉर्ट बाय कॉलम. कॉलम ए, अभी कॉलम ए का नाम ही नहीं है आपका, आप देख रहे हो कॉलम ए का नाम ही नहीं है अपने पास. तो आई जस्ट से कॉलम ए एंड आई से ओके. जैसे ही मैं ओके करूंगा, ये देखा क्या हो गया, दर्शनवा ऊपर आ गया. मगर दर्शन सबसे पहले दर्शन दे रहा है हमको, अच्छी बात है, लेकिन दर्शन के साथ साथ ये प्रजा भी पूरी ऊपर आ गई है. दिस इज कॉल्ड डेटा सॉर्टिंग. ये ऐसा होना चाहिए. बहुत लोग मुझे पूछते हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो मुझे ये भी पूछते हैं, पता है क्या? अरे सर आपने तो खाली नेम को करने का था, ये लोग क्यों ऊपर नीचे हो रहे हैं? आप सोचो, अगर ये लोग ऊपर नीचे नहीं होंगे तो कितना प्रॉब्लम होएगा. आप समझ रहे हो? सो मेनी टाइम्स, इसके लिए आपको ये वाला भी दिखा देता हूँ आज. ये देखो आप, मुझे मालूम अभी तक नहीं दिख रहा है आपको, दिखेगा. ये देखो आप, अब यहाँ पे दिख रहे हो आपको नाम. यू कैन सी ऑल द नाम्स. कैन यू सी द नाम्स? यस सर. Manasa, sorry, those who are watching the recordings, I'm so sorry. I'm having some fun with English. Okay, so we have names over here, right? I want this name to be sorted. I want this to be alphabetically arranged, where A comes first and Z comes later, right, Darshan? Yes. So what I will do, no need to select any columns. Just go to data, go to sort, and just click on what you want to sort out. I say I want to sort a name. Okay, that's all. A to Z or Z to A, that you can do that. And once I say okay, you will see that A comes first, but along with A, everyone, because if A comes, that Andrea comes on top, the Mendonza should also come on top. अगर एंड्रिया अकेली ऊपर आकर नीचे लटक गया तो एंड्रिया बेचारी शुक्ला बन जाएगी और पूरा गांव से बाहर भेज दिया जाएगा उसको. आप समझ रहे हो सब लोग? इसके लिए कभी भी ऐसे ही ऑटोमेटिक सॉर्टिंग होता है. तो बहुत बार देखो, अभी से वो देखो एंड्रिया के साथ मेंडोजा भी आ गया, बट मेनी टाइम्स स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं सॉर्टिंग. देखो ऐसे सॉर्टिंग करते हैं, नाम पे सॉर्टिंग करने का है, सो दे विल सिलेक्ट नेम. यू शुड नेवर सिलेक्ट द कॉलम. अगर आप नेम को सिलेक्ट करते हो और आप एक्सेल को बोलते हो कि एक्सेल मुझे सॉर्ट करना है, अब एक्सेल देखो तुमको एक वार्निंग देगा. पहले नहीं देता था, अब तुमको एक वार्निंग देगा. देखो ये आ गया वार्निंग. क्या बोलता है मालूम है? बोलता है भाई साहब आपने नेम को सॉर्ट किया है. सच में आपको नेम को सॉर्ट करना है, मींस यू वांट मी टू ओनली अरेंज द नेम्स विदाउट एनी टचिंग द सरनेम एंड प्रोडक्ट. सो द एंटायर रिलेशनल डेटाबेस विल नेवर बी रिलेशनल नाउ. आप समझ में आ रहा है? द शुक्ला विल बिकम खान. सोचो अब्दुल शुक्ला और जेम्स कौन रहेगा? शर्मा. जेम्स शर्मा कुछ अलग ही बन जाएगा, वातावरण गंभीर हो जाएगा. तो ये ऐसे दिखाता है. तो आपको पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट मी टू डू, डू यू वांट टू एक्सपैंड और यू वांट मी टू कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन. तो आप क्या बोलोगे? ऑलवेज एक्सपैंड. ऑलवेज एक्सपैंड तभी बोलने का व्हेन योर डेटाबेस इज अ रिलेशनल डेटाबेस. ओके, एंड दिस इज अ रिलेशनल डेटाबेस. ऐसे ओके, अब हो गया. नाउ आई सिलेक्ट माय नेम, I say Z to A, I say okay, and now Sia comes first. ठीक है ना? अभी आप मुझे बोलोगे सर लेकिन खाली नेम करने का रहेगा, ये ऐसा कभी पॉसिबल है क्या?
कि I want to only and only do names, right? Possible ही नहीं है, correct प्रकाश जी? Yes, sir. प्रकाश जी, Sir, for Yes, attendance. दुनिया में nothing is impossible. Yes, sir. तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो पॉसिबल ये एक चीज पूछनी थी सर। पूछिए। सर जैसे जब कंसोलिडेट डाटा करते हैं तो वो हमेशा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ही कंसीडर करता है, और अगर फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर है नेम की जगह तो वो कंसोलिडेट करेगा। सेम डेटा होना चाहिए। अभी अपन उस पे आते हैं ना, रुको ना, पहले मैं उस पे आता हूँ। तो ओके हम सर। लोगों को नेम को सेट सॉर्ट करना पड़ता है, क्योंकि मालूम है व्हेन यू हैव अ डेटा व्हिच इज नॉट रिलेटेड, से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में ऐसा डेटा है तो आई हैव, लेट्स से आई हैव सॉन्ग्स ऑफ से 19 ऐसा कुछ तो है 1970s, 1980s, 1990s ऐसा। नाउ दिस इज एंड 2000, these are my movies, ऐसा डेटा रहेगा तो here I have apple, mango, grapes, banana, and here I have bat, ball, और क्या, table, chair. Here I have rose, lily, lotus, and so on. Now if you want to sort, ये जो डेटाबेस है थोड़ी रिलेशनल है, जैसे 19 पिक्चर के गाने, the songs of Kumar Sanu, the songs of Sonu Nigam, the songs of Arijit Singh, the movies of 1970s. So if I want to sort this, अब मैं ऐसे कर सकता हूँ कि I want to sort everyone, चलेगा, ऐसे continue with the current selection because I don't want even apple के बाद जो बनाना आएगा ना तो chair नीचे ही रहना चाहिए. So I just say by column A, I say okay. You can just see apple is first. Again I will select this. I will go to sort. I say this time also I want to sort by column B and so on. दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है? So तभी ही करने का ये सब चीजें। तो चलो हम लोग वापस से वहीं पे चलते हैं। तो 1 2 3 ऐसा कुछ है, तो लेट्स से इसके बाद मुझे भागना है, मैंने आपको बताया था मुझे आज जाना था। Yes, sir. तो आई डू वन थिंग, यहाँ पे चलता हूँ मैं, आई गो टू डेटा एंड यहाँ पे मुझे मिलेगा डेटा कंसोलिडेट, दिख रहा है आपको? You can read this. It will summarize data from separate ranges. Separate range मतलब range अलग अलग जगह पे हो सकता है, and it will consolidate the results in a single output range. ऐसे okay, do that. अब जैसे ही मैं यहाँ पर करता हूँ, मुझे पूछता है what you want to do. I say I want to take the total. Okay, I want to take the total. Okay, now what is the reference? In reference, what I will do is I will click on product health sheet and I will reference में ये पूरा reference दे देता हूँ. Is that okay? I'll again click here and after that I will click on add. Means ये वाला add कर देता हूँ मैं, और almost selection है तो tension नहीं है. I'll just click on now product sports and you will see the selection is already there. तो मुझे सिर्फ अभी add ही करना है, ठीक है, क्योंकि अभी एक ही जगह पे है इसके लिए. Add. Again I'll go to product utilities. I say add. Now he's asking me कि do you want to use the labels in top row and left row? I say yes, top and left row जो है use labels करना है आपने को. I say okay. And now you will see that my sales report is reflecting this. आ रहा है समझ में? Okay. सर ये वाला किसके लिए करा था सर? ये बता रहा हूँ आपको, ये फायदा ये था इसका कि अब इसको अंडू कर दिया मैंने. अब इसका फायदा ये है कि सपोज अगर ये बंदा प्रोडक्ट हेल्थ में यहाँ पे है, ओके, ये वाला बंदा कहीं और है, and this fellow is again somewhere over here. So all have different range, correct? अब क्या करेगा ये बंदा? So your 3D function will not work over here because सबका B2 का थोड़ी टोटल लेने का है. So what I will do now? I will go to data. I say consolidate,
एंड देन इज आस्किंग मी रेफरेंस क्या देना है. तो ऐसे माय फर्स्ट रेफरेंस इज, इसको अपन उड़ा देते हैं जो भी पहले वाले हैं, रिमूव दैट. ओके, I say the first reference is go to product health and it's from year to year, right? And I say add. My second one is go to product sports. अभी देखो ये वाला आ गया ना, तो मुझे यहां से देना पड़ेगा. अच्छा, अप्रैल दिया था कि नहीं उसमें मैंने लास्ट वाले में F8. अच्छा, इसमें सिर्फ F8 ही दिया था मैंने, तो इसको अपन निकाल देना पड़ेगा. स्टार्ट फ्रॉम ईयर. अच्छा, F8 तक ही था वो. ओके, ऐसे add that product sports from year to year, add, and the last one is product utilities. Now this is from year to year. ठीक है, ऐसे add. And the I want to use the top row and the left column as my header. मतलब मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे ये यूज करना है ऐसे. ओके, तो वो आ गया. तो इवन दो देखो, इवन दो ये लोग सब लोग अलग अलग जगह पे थे, राइट गणेश? यस सर. फिर भी हमको ये टोटल मिल गया सबका. एक तो ये फायदा है. इसके लेकिन लिए अभी सर इसके लिए डाटा सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है. नहीं, डाटा सॉर्ट करने की जरूरत, सॉर्टिंग का कोई मतलब नहीं बनता. ओके. अब अगर इसमें कैसा है कि सपोज एग्जांपल ले लो, आप देख सकते हो कि दर्शन जो है वो 160 यूनिट्स बेचा है इसने, राइट? सो आई जस्ट गो टू प्रोडक्ट स्पोर्ट्स एंड दर्शन को, अब इसने क्या किया? अच्छा, ऐसा क्यों किया इसने? हाँ, ये यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, 160 है क्या दर्शन का? बिकॉज दर्शन इज ओवर ईयर, इट्स 40, इट्स 33, 63 एंड 87. कितना होता है? 63 प्लस 87 इस 150 होता है. और ये अपने को 73 बनता था. 40 प्लस 33 73. तो फिर बराबर है क्या? यस. नहीं, उसको दर्शन को कैसे मालूम पड़ेगा? ऐसा नहीं होगा ना. वो दर्शन को कैसे पकड़ेगा? उसको कैसे वी लुकअप थोड़ी यूज किया हम लोग ने. उसको थोड़ी मालूम है कि ये 87 किसको देने का है. सी 87 इज दर्शन का. एक बार चेक करते हैं अपन कि ईयर आई हैव दर्शन 40, ईयर आई हैव दर्शन 33, दैट इज 73, राइट? 73 प्लस 87 160. कितना होता है? 160. 160. अरे तो ऐसा है इसमें. सर एक बार पहला जैन के नीचे वाला सारा पहले वाले को देखो. चेक करो, पहले वाले को चेक करते हैं कि इसको चेक करते हैं. चलो 40 प्लस 43 83 प्लस 67 160 150. श्योर? Yes, Yes, sir. yes, 160. निपुण का 150 दिखा रहा है? 140. ओके, बिकॉज ऑफ दिस आपको फिर सब शीट्स के अंदर, सही बोले थे वो क्या नाम गणेश ने मुझे पूछा, आपको यहाँ पे भी फिर सॉर्ट करना पड़ेगा. हाँ सर, हाँ इसीलिए बोल रहा था सर. या बिकॉज यहाँ पे कोई लुकअप्स यूज नहीं हो रहा है ना. लुकअप्स यूज करेंगे हम लोग जिस दिन, तो उस दिन तुम लोग किधर भी ऊपर नीचे करो, कुछ भी करो, डेटा वो कुछ नहीं होने वाला. टेंशन मत लो उसका. फिलहाल यहाँ पे वो ऑटोमेटिक वो तो सेल्स उठा रहा है. ही हैज नथिंग टू डू विद निपुण और प्रकाश, राइट? सो इसका कोई मतलब नहीं बनता है. तो अभी हम लोगों को ये सबको सॉर्ट करना पड़ेगा भाई. ऐसे सॉर्ट बाय कॉलम सी दिस टाइम. Here also I will sort by column D, and Darshan is come up, right? And we'll remove it from here. Now again data में जाते हैं. अब क्या होगा लेकिन प्रॉब्लम है, already we have, right? यही है ऐसे. ओके, अब ये ठीक है. निपुण इज 148 श्योर. देखो जरा 38 43 81. 38 plus 43 81. very good plus 67 148. बराबर है. चलो इट्स फाइन. Okay, now let's say
कि निपुण जो है यहाँ पे 45 हो गया, तो 148 का भी वहां पे 150 होना चाहिए निपुण का, क्योंकि प्रोडक्ट स्पोर्ट्स में मैंने बढ़ा दिया है, बट यहाँ पे फिर भी वो 148 ही रहेगा. So if any changes in between, it will not reflect. आप बोलोगे सर ये मतलब क्या है ना, ये फालतू है ना प्रकाश? अभी तो लग रहा है. अभी तो मुझे भी लग रहा है. तो चलिए इसको अपन फिर से उड़ा देते हैं. अब मैं फिर से करता हूँ, राइट. आई अगेन कम हियर, आई गो टू डेटा कंसोलिडेशन, सम लेता हूँ, ये सब बराबर है. सिर्फ आपको यहाँ पे क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा लिखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी. ओके, नाउ इट विल रिफ्लेक्ट, नाउ यू कैन सी दिस. अब ये लिंक्ड है, आपको ये बता रहा है कि ये बोलता है दर्शन को 160 कैसे मिला, तो जस्ट क्लिक किया और मुझे बोलता है वो कि 160 ऐसे मिला उसको. दिस इज द टोटल ऑफ दर्शन का 160. यू गेटिंग मी? इसको कैसे मिला 150? इसकी वजह से. इसको 74 ऐसे आया. ओके, एंड सपोज 150 है निपुण का, एंड आई विल कम इन द प्रोडक्ट हेल्थ, और निपुण को यहां से मैं 30 कर देता हूं. नाउ इट्स 142, सो इट विल ऑलवेज रिफ्लेक्ट. नाउ बस इतना है कि दे हैज टू बी इन द सेम ऑर्डर, वो याद रखना पड़ेगा. चलेगा इन डिफरेंट रेंजेस, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट यू कैन नॉट मूव दर्शन डाउन एंड निपुण अप. बट नाउ यू कैन डू दैट, नो इश्यूज. अगर मैं अभी करूंगा तो पूरा दर्शन का पूरा रिकॉर्ड नीचे आ जाएगा. अब फिर क्या होगा वो सोचो. इसके बाद अगर दर्शन नीचे भी आ गया, ये वाला दर्शन इसको उठा के, चाहिए अंदर से हिला हुआ है ना यार, ये दर्शन नीचे आ गया. ठीक है, अब जयराज इस, ये कौन सा है, ये ऑलरेडी मैंने हिला दिया ना, इसको हाइड कर दिया. जयराज इज 178. अब देख लो आप, ये जयराज का है कि दर्शन का है, राइट. अब यहाँ पे अगर मैंने जयराज को 200 कर दिया, अच्छा ये तो हो गया. अच्छा दर्शन को करके देखते हैं. दर्शन को 200 किया तो हो रहा है. नाइस. आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अभी आपके सामने मैं भी R&D करता हूँ. इतना मैं इसके अंदर इतना घुस-घुस के R&D कभी किया नहीं, अभी मैं करते जा रहा हूँ. Still it is working, it's giving us good results. Nice. नहीं होना चाहिए, होएगा होएगा, सब में होएगा. सर ये थोड़ी सा हम फॉर्मूला डिफरेंट वर्कबुक्स भी यूज कर सकते हैं. Yes, you can always use the sheet referencing, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप रेफरेंसिंग जब डालते हो तो आपको डालना पड़ेगा ऐसे. अच्छा. Right, like write in this way that this is the name of my book, जो भी पूरा नाम है, and the sheet name whatever you have, इसका ये sheet, तो इसके अंदर I can use this also. तो लेकिन वो इसी वर्कबुक के अंदर any sheets of PROD. ओके, ट्राई करके देखो आप. सर एक चीज पूछनी है, जैसे अब आपने ये शीट का रेफरेंस दिया, हमने वर्कबुक का रेफरेंस दिया, तो और वर्कबुक सेम फोल्डर में होनी चाहिए, डिफरेंट फोल्डर से भी उठा लेगा खुद ही? किसमें? जैसे अभी रेफरेंस वर्कबुक का रेफरेंस दिया ना, नहीं ऐसे इसके लिए नहीं होता है वो, हम लोग फिर इसके लिए एक्चुअली पावर क्वेरी में करते हैं फिर हम लोग ये. डिफरेंट फोल्डर से उठाने. हाँ, अभी इसके डिफरेंट फोल्डर से उठाएगा, वो टोटल अप करेगा. फॉर दैट वी नीड पावर क्वेरी देन. फिर हम लोग वो सम फंक्शन से नहीं करते हैं, नॉट डू दैट. इसके लिए मतलब सेम फोल्डर में होना चाहिए ना? हाँ, सेम फोल्डर में उठाएगा वो. इट हैज टू बी सेम. पावर क्वेरी में आई कैन पुट अ क्वेरी वेयर इट विल लोकेट फ्रॉम डिफरेंट फोल्डर्स आल्सो, बट द बेटर वे इज, यू नो व्हाट, आपको हमेशा सारी फाइल एक फोल्डर में जमा करनी चाहिए.
इवन जब आप आगे जाके डेटा मॉडल बनाओगे तो एवरीथिंग हैज टू बी वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड, ब्रिंग इट इन वन प्लेस एंड डू दैट। लेकिन होता है डेटा अगर अलग अलग जगह पे है तो भी इसका इलाज है, बट वी हैव पावर क्वेरीज, वी हैव पावर पिवट्स, सब है अपने पास, मगर ये सब सम फंक्शंस विल नॉट डू दैट। तो परसों डे आफ्टर टुमारो, सी आज हमने ज्यादा कवर नहीं किया, आई जस्ट शोड यू ओनली सम। तो देखो सम में ही हम लोग ने ऑलमोस्ट 1 and 1.5 आवर्स जो भी है हम लोग ने निकाल दिया, ओनली सम फंक्शन। ऐसे करेंगे तो हम लोगों का एक्सेल बहुत लंबा जाएगा, बट स्टिल डे आफ्टर टुमारो आई विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल द फंक्शंस एक्सेप्ट लुकअप्स। लुकअप को छोड़ के मैं सारा फंक्शन आपको सिखा दूंगा, बहुत सारे फंक्शंस हैं अच्छे अच्छे, ऐसे तो बहुत है, बट वी विल डू द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, लेफ्ट राइट मीन्स, lookups, match, index, search, find, these are all substitute, these are all very important functions that you should know. Okay, तो परसों करते हैं, राइट सर। बिकॉज लुकअप्स के ऊपर हम लोगों को पूरा आई थिंक 2 लेक्चर जाएगा। तो लुकअप्स कौन कौन से होंगे हमारे? सब हो जाएंगे जितने भी लुकअप्स हैं, वी लुकअप, एच एच लुकअप, इंडेक्स, मैच, एक्स लुकअप्स, फिर मल्टी लुकअप्स, मल्टी सर्च। सर्चिंग के अंदर कितना कुछ है, कॉम्प्लेक्स सर्चिंग भी करेंगे। सर एक्स लुकअप भी होता है, अभी जेड आ गया है, 365 में है वो। अभी निकला है ना, 370 निकला है। अच्छा, एक्सेल में नहीं है ना वो। ठीक है, सो आई एम जस्ट किडिंग। हाँ, तो सी यू डे आफ्टर टुमारो। आज हम थोड़ा जल्दी वाइंड अप करते हैं। संडे की मंडे संडे नो संडे नहीं है अपना, जो मंडे भी- मंडे 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 ओके मंडे मंडे गुड नाइट सर। मंडे मेरी लेक्चर में